Good morning class. It is our science video, class 7, part 1 of chapter 2. Students, मैंने आपको पहले बुक का नाम बताया है फर्स्ट वीडियो में. Which book you have to purchase with? AP के बारे में. And about in previous video, we discussed our first chapter, which is nutrition in plants. हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हाउ अ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इन विच वी सॉ कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ फूड, देन वी सॉ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट प्लांट के टू टाइप्स होते हैं कि उस तरीके से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. इट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. क्या पढ़ाते हैं फर्स्ट वीडियो में? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स विच हेल्प और एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी टू एनेबल इट कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. वो एलिमेंट्स, वो एसेंशियल कंपोनेंट जो कि प्लांट और ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो पूरी लाइफ प्रोसेस या फिर सेल्स के लिए बेसिक नीड है, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. एंड दे आर हम न्यूट्रिएंट कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम द फूड. एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड दीज नेसेसरी रिक्वायरमेंट टू अवर बॉडी इज कॉल्ड फूड. फिर हमने देखा न्यूट्रिशन क्या होते हैं, वो प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं. द प्रोसेस by which an organism obtains nutrients and uses them especially for growth, development and maintenance. It's a nutrition. Then we discuss about their modes like autotrophic and heterotrophic. In first video we discuss about what is heterotrophic students. मैं आपको अभी सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था. Then we discuss about next chapter. Autotrophic nutrition. Auto means plants, those plants which make their own food. वो प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, they are called as autotrophic nutrition. और सबसे important process by which they make their own food, it's a photosynthesis. Autotrophic nutrition, organisms which can make their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of किस चीज़ के presence में? sunlight, chlorophyll are called as autotrophs और they are green plants. यहाँ पे न्यूट्रिशन हमारे पास कौन कौन से आएंगे? ऑक्सीजन, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड. Then we discuss how the plant prepare their own food with the help of photosynthesis. मैं आपको शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस फ्रॉम दैट पिक्चर. लाइक इज अ ग्रीन प्लांट और द होल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस occurs in the leaf. So leaves are called as the kitchen of that plant. Why? Because it contains chlorophyll, the stomata, through which the process occurs. Because chlorophyll, what is the work of chlorophyll, students? It traps the sunlight which work as energy, through which and what is the process of the root? It traps water and minerals. Carbon dioxide is trapped from air and it releases oxygen. So the plants make the food. And what type of food they make? Glucose. From that reaction you can observe carbon dioxide plus water. It's present in air, it is in soil. ये रूट के थ्रू प्लांट्स ऑब्जर्व इनटेक करते हैं. देन सनलाइट, क्लोरोफिल, इट मेक ग्लूकोज, ऑक्सीजन और एनर्जी, द प्रोडक्ट और फूड ऑफ द प्लांट. फिर हमने पढ़ा था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर प्लांट, इट्स नोन एज हेटेरोट्रॉफ. और उसमें हमने काफ़ी सारे टाइप देखे. पैरासाइट जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में
that live inside of other organisms. It's known as parasites. Then we saprophytes, which live on dead or decayed plants or animals. Next, we discuss about symbiotics, in which both organisms are mutually benefiting. उन organisms, वो organisms जिनमें दोनों को benefit होता है. Both get nutrients from each other. Example like lichen, algae, fungus. Next, we discuss insectivorous. They are a type of carnivorous animal. Like जैसे carnivorous animals होते हैं, ऐसे ही insectivorous. You can understand from that picture. What are insectivorous? The plants which eat insects or consume insects, small insects, for nutrition. They are called as insectivorous. Next, students will discuss कि सॉइल किस तरीके से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि सॉइल में तो प्लांट को ग्रो कराएंगे तभी तो जो प्लांट है दे टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. ये किस तरीके से सॉइल न्यूट्रिएंट कैरी करते हैं. देयर इज अ राइजोम बैक्टीरिया विच प्रेजेंट इन द सॉइल. इट्स अ बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है टू द सॉइल को, क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होती प्लांट में. तो जो राइजोम है वो पहले नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन कराता है इन द सॉइल, थ्रू विच रूट्स ऑफ द प्लांट ऑब्जर्व दैट नाइट्रोजन. So rhizome is very important for the production or the growth of plants. ये था हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने थोड़ी NCERT क्वेश्चन भी पढ़े, एक्सरसाइज भी डिस्कस करी. आई होप यू सॉल्व योर एक्सरसाइज. So let's move on our second chapter. So our second chapter is nutrition in animals. You can see न्यूट्रिशन इन एनिमल. सेकेंड चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब हम पढ़ेंगे एनिमल. एनिमल में ह्यूमन बीइंग भी आया था. एनिमल्स ऑल्सो नोन एज ह्यूमन बीइंग. वी हम लोग अब हम अपने न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं. प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं. वी डिस्कस दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ द प्लांट. अब नाउ अबाउट एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग. वी आर डिपेंड ऑन अदर substance or other animals for our food. So what we are heterotrophic. हम लोग क्या है? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. सो वी आर हेट्रोट्रॉपिक. Okay, so let's start. The basic in this chapter is, इसमें पहले बताया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जैसे जो भी हम फूड खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसका ब्रेकडाउन वो हमारी बॉडी में कैसे प्रोसेस करता है और हमें खाने से कैसे एनर्जी मिलती है. In this chapter, we learn how animals prepare their own. कैसे जो एनिमल्स हैं वो कैसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं और कैसे वो खाना प्रोसेस करते हैं, कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है. न्यूट्रिशन हमने पहले ही पढ़ा था. द एनर्जी बाउंड फूड आर नोन एज न्यूट्रिशन. और हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत डिफरेंट सब्सटेंस मिलकर बनी हुई है. अब जो the raw material for the building of our food is obtained from food. जितने भी material जैसे vegetable, fruit, anything we obtain from food, we get nutrient from it, and the food nourishes our body. Food क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, which helps in growth और डेवलपमेंट, और जिसकी वजह से हमें it keeps us healthy. अब ये होल प्रोसेस जब हमें खाना when we put food in our mouth, how it कितने सारे स्टेप्स होते हैं कि वो कैसे प्रोसेस करता है. जैसे अब वही हमें इसे पढ़नी है और इसी में हमारी न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है कि कैसे वो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. फर्स्ट
first is जब हम अपना food, when we put food in our mouth, it process through and goes through food pipe, then it reaches to stomach, small intestine, large intestine, then rectum or anus, through which it excrete out. So this is the whole process of our human body, also called as different steps in nutrition. Now we will discuss in brief these steps in next video.